Hello friends, myself Rasika Pagaria. In last lecture, we were studying about the electronic media, right? In that we studied the television, then we studied the radio, we studied the characteristics of radio. The characteristics are the cheap media, flexible, wide coverage, easy to remember the message. Then apart from that, we have started the topic other types of media. In that we studied internet, electronic media, outdoor media advertising and films. Now we'll study the next type, that is the new age media. With the advent of internet, we are now enjoying the benefit of high technology mass media, which is not only faster than the old school mass media but also has a wide spread range. सी विद द एडवेंट ऑफ मीडिया, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा ना, वैसे वैसे लोगों को नई टेक्नोलॉजी देखने मिली और ये मास मीडिया भी क्या कर रहे हैं, इवन दे आर कमिंग अप विद द मास टेक्नोलॉजी है। हाँ, जो अपने पुराने स्कूल में, पुराने मास मीडिया स्कूल में अपन पढ़ते थे, उससे फास्ट अभी पढ़ाया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, बट ऑल्सो हैज़ अ वाइड स्प्रेड रेंज, बट उतना ही वाइड स्प्रेड रेंज भी है। Mobile phones, computer and internet are often referred to a new age media. See, mobile phones, computers and internet are often referred as a new age media. Internet has opened up several new opportunities for mass communication, which include email, website, e-forum, e-book, blogging, internet, TV and many other which are moving today. See, इंटरनेट ने क्या किया है, इंटरनेट हैज़ ओपन बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल गए हैं, राइट। जैसे ईमेल, वेबसाइट, ई फोरम, ई बुक, हाँ टीवी और बहुत से नए नए आए ऊपर। साइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब हैड मेड कम्युनिकेशन इन द masses all the more entertaining, interesting and easier. से साइट लाइक से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे क्या है, अपन बहुत सारे कम्युनिकेशन के नए नए तरीके देखते हैं, राइट। और इनसे क्या हो रहा है, लोगों के लिए नया प्रोडक्ट कुछ भी आया तो इजीली पता चल रहा है एंड मेकिंग द एंटरटेनमेंट सोर्स एज अ मोर इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज द मोबाइल फोन. Mobile phones were introduced in Japan in 1979 but became a mass media only in 1998 when the first downloadable ringtone were introduced in Finland. See, mobile phone were introduced in Japan. Mobile phone was introduced in Japan in 1979 बट उसको एक मास मीडिया का रूप कब दिया गया है, इन 1998 जब फर्स्ट डाउनलोडेबल रिंगटोन वेर इंट्रोड्यूस्ड इन फिनलैंड। फर्स्ट डाउनलोडेबल रिंगटोन, आज अपने पास रिंगटोन वगैरह पहले इतना कुछ नहीं था रिंगटोन का, आज अपन कितना रिंगटोन नई 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 मोबाइल में अपने को सुनने मिलती है, राइट। और ये डाउनलोडेबल रिंगटोन वेर इंट्रोड्यूस्ड इन फिनलैंड। Soon, most form of media consumed on mobile towers over that of internet content. See, soon क्या हो गया, नए नए मीडिया आए मोबाइल में, नया नया मोबाइल आया, राइट। फिर सो मोस्ट फॉर्म ऑफ मीडिया कंटेंट वेर इंट्रोड्यूस्ड वन मोबाइल फोन एंड कहाँ पे पढ़ रहे थे, आई थिंक वी मिस्ड आउट समथिंग। Internet has opened up, new age media. Internet has opened up several new opportunities for mass communication, which includes email, website, e-forum, e-book, blogs, internet, TV, and many other which are booming today. Sites like Facebook, Twitter, and YouTube had made communication to the mass all the more entertaining, interesting, and easier. Sorry for using that word. इंटरनेट हैज़ ओपनड अप सर्वरल न्यू, इंटरनेट की वजह से क्या है, अपने को नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिले कम्युनिकेशन के लिए, लाइक ईमेल, वेबसाइट, ई फोरम, ई बुक, ब्लॉगिंग। हाँ, अपन बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब ब्लॉग्स लिखते हैं, राइट।
ब्लॉग्स लिखना यानी क्या, राइटिंग समथिंग अबाउट, और उस उधर यूट्यूब पे वगैरह डाल देते हैं, तो क्या है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, जब लोग रीड करते हैं, लाइक करते हैं ना, तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है एंड दे आर ऑटोमेटिकली, उनको एक दे गेट मोटिवेटेड टू राइट मोर ब्लॉग्स. वन ऑफ माई सिस्टर राइट्स ब्लॉग्स. Internet, TV, and many others which are booming today. Sites like Facebook, Twitter, and YouTube had made communication to the masses all the more entertaining, interesting, and easier. See, Facebook, Twitter, YouTube क्या है? It is one of the means for communication to the masses, and it is becoming more interesting and easier. Next is the mobile phone. अपन ने गड़बड़ किया. I'll read out just. Mobile phones were introduced in Japan in 1979 but became a mass media only in 1998 when the first downloadable ringtone were introduced in Finland. Soon, most form of media content were introduced one mobile phone, and today total value of media consumed on mobile tower over that of internet content. See, आज क्या है, आज अपने मोबाइल में इंटरनेट है, आज अपने मोबाइल में ही अपना सब कुछ है, आज अपना वॉलेट भी अपना मोबाइल ही है. The mobile media content includes mobile music, which includes ringtone, ringback tone, true tone, MP3 files, karaoke, music video, music streaming service, etc., mobile gaming, and various news, entertaining and advertising service. सी, मोबाइल फ़ोन में अपने को क्या क्या मिलता है, अपने पास रिंग टोन रहती है, रिंग बैक टोन रहती है, कॉलर ट्यून रहती है, म्यूज़िक रहते हैं, देन और बहुत से मोबाइल गेम्स रहते हैं, देन वी कैन हियर न्यूज़, एंटरटेनिंग एंड अदर एडवर्टाइजिंग सर्विस ऑल्सो. इन जापान मोबाइल फ़ोन आर वेरी पॉपुलर. सी, जापान में मोबाइल फ़ोन आर वेरी पॉपुलर. सिमिलर टू द इंटरनेट, मोबाइल्स आर ऑल्सो interactive media like email on the internet. See, similar to the internet, mobile क्या है, मोबाइल भी एक मीडिया है and it is very attractive. The top application on mobile is also personal messaging service, but text messaging is used by many people. See, the top application on mobile is the personal messaging service. ये पहले का सारा मैसेज वगैरह किधर कर सकते हो सब बोल रहे हैं. Practically all internet services are applicable, exist, have similar cousins on mobile, from search to multimedia games to virtual worlds to blogs. See, आज अपन इंटरनेट सर्विस है तो अपन क्या क्या देख सकते हैं, अपन डायरेक्ट मोबाइल पे भी ब्लॉग लिख के मोबाइल से ही अपन अपलोड कर सकते हैं, राइट. यही सारा मोबाइल के बारे में बोला है. मोबाइल हैज़ several unique benefits which many mobile media pundits claim that mobile is more powerful, carried and always connected communication device. See, mobile has several unique benefit. Mobile में क्या है, there are many unique benefit with the mobile, and the mobile is one of the most powerful media and it is easy to be connected. Mobile has best audience, accurate, and is the only mass media with a built-in payment channel available to every use without any credit card or payable. See, mobile has the best audience accurately. मोबाइल से क्या सबसे ज़्यादा हर कोई मोबाइल यूज़ करता है, तो मोबाइल हैज़ द बेस्ट ऑडियंस एंड इज़ द ओनली मास मीडिया विद अ पेमेंट चैनल अवेलेबल टू एवरी यूज़ विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड और पेमेंट. अभी तो लोग क्या है मोबाइल से गूगल पे वगैरह करते हैं, सब करते हैं, राइट. सी, आई डोंट यूज़ गूगल पे बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ एंड वन इंसिडेंट्स टुक प्लेस. बट मैं क्या करती हूँ, आई हैव द भीम ऐप. भीम ऐप से क्या करते हैं, स्कैन करके पे कर देती हूँ, सिंपल. इवन इफ आई डोंट टेक कैश, इफ आई टेक माई मोबाइल इज माई वॉलेट फॉर मी. नेक्स्ट इज द कंप्यूटर. with the invention of computer, the impossible has become possible. सी, कंप्यूटर इन्वेंशन हो गया तो क्या है, इम्पॉसिबल हैज़ बिकम पॉसिबल. वी वर्चुअली गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू पियानो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल. सी, मोबाइल से क्या है, वी कैन गेट द ऑल द इंफॉर्मेशन. इट हैज़ एडेड स्पीड एंड मल्टीमीडिया to the information which was easily available only in the print format. See, it has added speed and multimedia to the information. See, अब क्या हो गया,
इट इज़ एडेड स्पीड आ गया है, मल्टीमीडिया में और इन्फॉर्मेशन आ गई है, एंड वी कैन प्रिंट ऑल्सो, एंड इवन कैन वॉइस देयर ओपिनियन थ्रू कंप्यूटर। आप कंप्यूटर से आपका कुछ भी वॉइस, आपका ओपिनियन भेज सकते हो। कंप्यूटर हैव एडेड अ न्यू ब्रेक थ्रू इन द मास मीडिया बाय कटिंग एज टेक्नोलॉजी। देन नेक्स्ट इज द इंटरनेट. This is the most important device of the new age media. The discovery of internet can be called as the biggest invention in mass media. See, discovery of internet क्या है? It is one of the biggest invention in mass media. In early days, news used to reach people only with the morning newspaper. See, पहले कैसे था? लोगों को खबरें कैसे पता चलती थी? ओनली विद द हेल्प ऑफ मॉर्निंग न्यूज़पेपर। बट टुडे क्या है, यू कैन, अपने को तो मोबाइल में नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहते हैं। आज टेस्ट मैच में ये हो गया, आज ये हो गया, आज फिल्म इंडस्ट्री में ये हो गया। आज अपने को नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहते हैं मोबाइल में। पहले से रहता था क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द रॉयल वेडिंग ऑफ काटेम मिल्टन एंड प्रिंस विलियम was watched live on the internet by millions of people around the world. See, the royal wedding of मिल्टन एंड प्रिंस विलियम, इनकी शादी लोगों ने लाइव देखी थी। कैसे देखी थी? पूरे वर्ल्ड ने देखी थी। कैसे देखी थी? जस्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट हैज़ इंस्पायर्ड इंटरैक्शन एंड कनेक्टिविटी थ्रू इट्स सोशल नेटवर्किंग मीडियम. सी, इंटरनेट हैज़ inspired interaction and connectivity with the help of social networking medium. It has become one of the core means of mass communication. See, it is one of the core means of mass communication. One cannot think of leading the life without internet. आज इंटरनेट के बिना आप रहने का सोच सकते हो? नहीं. No one can think of living without internet. आज आपको बोलूँगी मैं, आपको एक जंगल में ऐसे छोड़ती हूँ बिना मोबाइल के, लाइक एक बड़ा विला है थोड़ा सा फॉरेस्ट में है और आपको वहाँ पे रहना है। आप बोलोगे मैं रह जाऊँगा, बट मुझे मेरा मोबाइल चाहिए साथ में। बिना मोबाइल के मैं नहीं रहने वाला, राइट? एक्चुअली दैट इज़ द फैक्ट. देन advantages of electronic media. Following are the advantage of electronic media. Speedy transmission. It requires only a few seconds to communicate through electronic media because it supports quick transmission. It requires क्या है? Few seconds. With the electronic media क्या है? अपने को बस कुछ सेकेंड लगते हैं, बिकॉज क्या है? मैसेज कैन बी क्विकली ट्रांसमिटेड. Wide coverage. World has become a global village and communication around the globe requires a second only. See, आज पूरा वर्ल्ड क्या बन गया है? ग्लोबल विलेज, राइट? एंड कम्युनिकेशन कर जो भी करना अपने को पूरे ग्लोब को करना पड़ेगा, एंड इट रिक्वायर्स ओनली सेकेंड्स ओनली. लो कॉस्ट. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन saves time and money. For example, text SMS is cheaper than the traditional letter. See, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है? सेव टाइम्स एंड मनी. आजकल शादी के इनविटेशन भी कैसे आते हैं? मोबाइल के थ्रू ही आते हैं ना. आपको PDF फाइल में शादी का इनविटेशन वगैरह आता है, राइट? एंड फ़ोन, देन दे कॉल अ फ़ोन. तो फिर क्या है? आपको पत्रिका वगैरह, यू डोंट हैव टू प्रिंट द पत्रिका एंड ऑल, राइट? तो क्या है? इससे आपका टाइम बच रहा है, वेस्टेज ऑफ पेपर नहीं होता है, और एनीवे पैसा भी बचता है. देन एक्सचेंज ऑफ फीडबैक. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन allows the instant exchange of feedback. Electronic communication, what it helps? It allows you the instant exchange of feedback. तुरंत feedback भी मिल जाता है. So communication becomes perfect using electronic media. So communication क्या हो जाता है आज? It is one of the perfect using electronic media. Then managing global operation. Due to the advancement of electronic media, business managers can easily control operation across the globe. से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन रहा है, बिजनेस मैनेजर क्या है? वो पूरे वर्ल्ड पे ट्राई कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड मार्केट बनाने का ट्राई कर रहे हैं. वीडियो और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल एंड मोबाइल कम्युनिकेशन आर हेल्पिंग मैनेजर्स इन दिस रिगार्ड. सी, वीडियोज और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल एंड मोबाइल communication are helping managers in this regard. Then disadvantage of electronic media.
First is the volume of data. The volume of telecommunication information is increasing as much as such a fast rate that business people are unable to observe it within the relevant time limit. See, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इतना टेलीकम्युनिकेशन यूज़ हो रहा है ना कि बिजनेस लोग क्या है, वो लोग जितना फास्ट सब बढ़ रहा है उतना फास्ट वो स्पीड अप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि और कर भी रहे तो वो उतने टाइम लिमिट में नहीं हो पा रहा है पूरा. The cost development. Electronic communication requires huge investment for infrastructural development. Sorry, electronic communication क्या है? Electronic communication requires huge investment, right? अगर आपको इंटरनेट लेना है, कोई टावर सेट करना है तो क्या है? You need a huge investment. Frequent changes in technology also demand future investment. इतना टेक्नोलॉजी वैसा ही रह रहा है क्या? नहीं, टेक्नोलॉजी भी कंटिन्यू चेंज कर हो रहा है. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे नए टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करने के लिए यू नीड टू डू सम इन्वेस्टमेंट. लीगल स्टेटस. डेटा एंड इंफॉर्मेशन इफ टैक्स्ड मे बी डिस्टोर्ड एंड विल कॉज जीरो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. ऐसे लीगल स्टेटस कुछ नहीं यहाँ पे. अनडिलीवर्ड डेटा. डेटा may not be revived due to system error or fault with the technology, hence required service will be delayed. See, अगर डेटा अपने पास अच्छे से नहीं रहा या सिस्टम में एरर रहा, इफ देयर इज सम फॉल्टी टेक्नोलॉजी, तो क्या है, द रिक्वायर्ड सर्विस विल बी डिलेड. जो सर्विस है आपका वो डिले हो जाएगा, राइट. सी, परसों ऐसे हुआ, आई हैड बिन टू बैंक, अर्जेंट मेरे को कैश डिपॉजिट करना था, राइट, क्योंकि वो किसी और को ट्रांसफ़र करना था, बैंक थ्रू ट्रांसफ़र करना था. तो क्या है, आई वेंट इन XYZ बैंक एंड वी सो सॉरी, आज कुछ नहीं होने वाला. एंड इट वॉज 1 o'clock, अराउंड 1:30 इट वॉज, एंड दे टोल्ड मी सॉरी आज सर्वर डाउन है, आज कुछ नहीं हो सकता. देन फ्रॉम बिबेवाड़ी आई हैड टू गो टू FC रोड. फिर वो कैश मैंने मेरे हस्बैंड को दिया एंड जस्ट फॉर दैट आई वेंट टू FC रोड. इट वॉज वेरी हेक्टिक फॉर मी. सो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आता है तो क्या है, आपका सर्विस डिले हो जाता है. नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी. टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी डे एंड therefore poor countries faces the problem as they cannot afford the new and advanced technology. See, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी डे. रोज़ टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है और क्या है, पुअर कंट्रीज फेसेस द प्रॉब्लम एज दे कैन नॉट अफोर्ड द न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट. तो पुअर कंट्रीज क्या है, दे कैन नॉट अफोर्ड द न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी क्या है, रोज़ नया नया आ रहा है, रोज़ टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है. तो पुअर कंट्रीज ये अफोर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं. सो दे आर लैकिंग बिहाइंड. देयरफॉर पुअर कंट्री नीड टू डिपेंड टुवर्ड्स डेवलप्ड कंट्रीज फॉर शेयरिंग ग्लोबल नेटवर्क. सो पुअर कंट्रीज जो भी है उनको, जो डेवलप कंट्री है उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है नई टेक्नोलॉजी के लिए, हर चीज़ ग्लोबली पता करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, इट इज़ वेरी कॉस्टली ओवर हियर. सो दिस वाज द advantage and disadvantage of electronic media. We'll wind up the lecture here. In next lecture we'll study the web media, right? Or should we start with small introduction? चलो let's start with the just web media क्या है, ये strong introduction देख लेते हैं. Then we'll study the concept of web journalism and features of journalism in next lecture. So news organizations are increasingly engaging audience with literally update of news events as they unfold, courtesy of live blogs on their website and in mobile apps. See, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली ऑडियंस को नई नई खबर देने के लिए ट्राई कर रहे हैं. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स ऑन द वेबसाइट और मोबाइल ऐप पे वगैरह आते हैं आपके बहुत ज़्यादा एंड ऑल. दिस हैव बिकम अ की प्लेटफॉर्म फॉर ब्रेकिंग न्यूज़ and following episodic events or to keep audience updated on general subject thing. See, ये एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो गया है ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए, नए नए इवेंट्स के लिए, ताकि वो ऑडियंस को जनरल सब्जेक्ट थीम दे सके. व्हाट इज़ मोर, लाइव ब्लॉग्स आर द epitomes of network journalism as they fed off and into the unfolding story as it happens across a range of media. But despite
Being established in the news industry, this purportedly pivotal platform for journalism practice and audience interaction still lack empirical background, with existing work often based on a narrow set of case study or newsroom interview. See, अब क्या है, अभी आपको वेब मीडिया से क्या है, आपको न्यूज़ रूम में इंटरव्यू वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं, इस सब का आपको पता चलता है। हाँ, अब वो थोड़ा हर इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है आपको। So same thing has been told here. On the key question of sourcing practice, who is given authority to frame an event? अभी क्वेश्चन ऐसे एरेज होते हैं, किसने आपको अथॉरिटी दी है कि बाबा आप इवेंट वगैरह फ्रेम करो. वी नो रिलेटिवली लिटिल अबाउट वेदर लाइव ब्लॉग्स आर टू बी डिस्ट्रप्टिव प्लेटफॉर्म विद ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ वॉइस और वेदर दे परपिचुएट ट्रेडिशनली सोर्सिंग पैटर्न. सी, यहाँ पे क्या है, ये आपके छोटे छोटे ब्लॉक्स रहते हैं, ये क्या है, अट्रैक्ट करते हैं, कभी कभी आवाज़ सुनाई देती है. दिस इज नथिंग बट अ ट्रेडिशनल सोर्सिंग पैटर्न. We'll finish the lecture here today. If you have any doubt, mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@aramedu.in. Thank you.